سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح کے روح پرور مناظر۔ پاکستان میں چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ زونل کمیٹیوں کے بھی اجلاس متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ پاکستان میں یکم رمضان المبارک کل ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان سپارکو۔ رمضان المبارک کی آمد، پنجاب کا کریا کریا شہر شہر سج گیا۔ استقبال رمضان کی پرنور تیاریاں، ہر بڑے شارع، مارکیٹ اور چوراہوں پر چراغاں، روڈز کے اطراف میں گرین بیلٹ پر رنگ برنگی روشنیاں، سڑکوں کے کنارے پول پر اللہ تعالیٰ کے نام روشن و تاباں۔ ہر بڑی سڑک کے کنارے درختوں میں کلرفل لائٹس نے سما باندھ دیا۔ مارکیٹس کے داخلی راستوں پر رمضان المبارک تھیم پر محرابی لائٹنگ، سہولت بازار، رمضان البازار میں جشن اور خوشی کا سما۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور قطر کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ، امن و استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آغاز پر ایک دوسرے کو دلی مبارکباد، امت مسلمہ کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر معاشی حکمت عملی اور مالی نظم و ضبط کی بدولت پاکستان کی مالیاتی کارکردگی میں نمایاں بہتری۔ مالی سال 2026 کی پہلی شش ماہی میں 542 ارب روپے کا تاریخی مالیاتی سرپلس حاصل۔ اخراجات میں کمی، مؤثر پالیسیز، حکومتی آمدن میں اضافے نے مالی صورتحال کو متوازن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی اور اخراجات میں نظم و ضبط سے مالی بجٹ مزید مستحکم ہوئی۔ آئی سی ٹی شعبے کی رواں مالی پہلے 7 ماہ کے دوران نمایاں کارکردگی، برآمدی ترسیلات زر میں 19.78% اضافہ ریکارڈ۔ آئی سی ٹی برآمدات کا حجم 2.61 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ صرف جنوری 2026 میں آئی سی ٹی خدمات کی برآمدات 374 ملین ڈالر رہیں، جو جنوری 2025 میں 313 ملین ڈالر کے مقابلے میں 19.5% زیادہ ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کے دوران 3870 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,77,023 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر تجارت جام کمال سے کیمیکل انڈسٹری کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں ملاقات۔ ٹیکسٹائل کے ساتھ کیمیکل، فارماسیوٹیکل، سرجیکل، فوڈ پروسیسنگ اور ویلیو ایڈڈ مینوفیکچرنگ کے فروغ پر زور۔ برآمدی سہولت کاری اسکیموں کا جائزہ لینے اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ صنعتی اصلاحات اور برآمدی تنوع پر زور۔ وزیر تجارت جام کمال کا صنعت سے مسلسل مشاورت اور تحقیق پر مبنی صنعتی حکمت عملی کے عزم کا اعادہ۔ قوم کے اتحاد سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ اپنی بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہیں۔ دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والی بیرونی قوتوں کے مذموم عزائم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ جمہوری عمل، انصاف، قومی ہم آہنگی اور ترقی کا مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے صبر اور مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور سلامتی ہماری جماعت کی اساس ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا لاہور میں پیپلز پارٹی کی مقامی اور صوبائی قیادت سے خطاب۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے نومنتخب وزیر اعظم طارق رحمان کو حلف اٹھانے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم طارق رحمان کے لیے بھرپور خیر سگالی کا اظہار۔ اپنے بھائی کے ساتھ قریبی اور بامعنی روابط کا منتظر ہوں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ باہمی مفادات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ تاریخی تعلقات کو مزید گہرا کیا جا سکے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایکس پر بیان۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ دونوں ملکوں کی جامعات کے درمیان روابط بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مصنوعی ذہانت کا کردار زندگی کے ہر شعبے میں بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک ہیں۔ مشترکہ چیلنجز سے مل کر نمٹنے کی ضرورت ہے۔
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बांग्लादेश में नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी ढाका की तकरीब से खिताब। आज़मीन हज की खिदमत तमाम मुआवनीन का फर्ज है। आज़मीन की खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुआवनीन को मेरिट पर मुंतखब किया गया है। मुआवनीन को आला मयार की तरबियत फराहम की गई है। आज़मीन हज के लिए हर मुमकिन बेहतरी इंतजामात किए गए हैं। हज इंतजामात से मुतालिक आज़मीन का फीडबैक अहमियत रखता है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का हज ट्रेनिंग वर्कशॉप से खिताब। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतालिक मुफाहमत पर पहुंच गए हैं। जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं, तहम अमली शुरुआत हो गई है। दोनों फरीक मुमकिना मुआहदे की दस्तावेजात पर काम करेंगे। ताकत के इस्तेमाल की अमरीकी धमकियों का अब फौरी खात्मा हो जाना चाहिए। जनीवा में ओमान की सालिसी में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के अख्ताम पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर ने की। पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 85 रुकन ममालिक के मकबूजा मगरबी किनारे से मुतालिक इसराइली एकतरफा इक़दाम और पॉलिसियों की शदीद मजम्मत। बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालिका करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसराइली इक़दाम से खत्ते में अमन इस्तेहकाम और तनाज़े के देरपा दो रियासती हल की जारी कोशिशों को शदीद खतरात लाहिक हैं। मुश्तरका बयान। दिफाए वतन के लिए अजीम कुर्बानी देने वाले शोहदा पाकिस्तान को सलाम। लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शहीद पाक फौज के एहलकारों के लवाहिकीन के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के शोहदा के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। कोर कमांडर पिशावर ने शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की और वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। और दिफाए वतन में अजीम कुर्बानी देने वाले शहदा पाकिस्तान को सलाम। लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शहीद पाक फौज के ICC T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। कोलंबो में शेड्यूल मुकाबला दिन 2:30 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप दिल्ली में 34वां मैच जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात मध्य मुकाबिल। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त शाम 6:30 बजे मेजबान भारत और नीदरलैंड की टीमें अहमदाबाद में आमने सामने होंगी। यूरोप में चैंपियंस लीग नॉकआउट के पहले मरहले में फ्रांसीसी क्लब PSG की मोनाको के क्लब AS मोनाको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने पुर्तगीज क्लब बेनिफिका को 1 गोल से हरा दिया। और मिलान कोरेंटीना इटली में सरमाई ओलंपिक्स विमेंस ओलंपिक बिग एयर फाइनल मुकाबला आखिरी जंप तक सनसनीखेज रहा। मामूली पॉइंट्स के फर्क ने नतीजा तय किया। कनाडा के फ्री स्टाइल स्कीयर मैग्नन ओल्डहैम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। चीन के एलन गो ने चांदी और इटली की फ्लोरा तेबेनीली ने कांसी का तमगा जीता। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ माहम वारिस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील की जानी बढ़ेंगे। सऊदी अरब समेत अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा है। रमज़ान मुबारक के मुकद्दस माह के आगाज़ पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली तरावी के रूह परवर मनाजिर हुए। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। जोनल कमेटियों के भी इजलास मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में होंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में यकम रमज़ान मुबारक कल होने का इम्कान है।
पंजाब भर में रमज़ानुल मुबारक की आमद के मौके पर शहर शहर और करिया करिया चरागां कर दिया गया है। बड़ी शाहराहों, चौराहों और मार्केट्स को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया है। सड़कों के अतराफ ग्रीन बेल्ट्स और दरख्तों पर दिलकश लाइट्स नस्ब की गई हैं, जबकि पुल्स पर अस्माए इलाही रोशन और ताबा नजर आ रहे हैं। मार्केट्स के दाखिली रास्तों पर रमज़ान थीम पर मेहराबी लाइटिंग समा बांध रही है। सहूलत बाजार और रमज़ान बाजार भी रोशनियों और सजावट से जगमगा उठे हैं। पाकिस्तान और कतर ने दो तरफा तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा करते हुए खित्ते और उससे बाहर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने टेलीफोन पर राबता किया और एक दूसरे को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के आगाज़ की दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता और दुनिया के दीगर खित्तों में अमन और मफाहमत के फ़रोग़ के लिए शेख तमीम बिन हमद सानी की सरपरस्ती में कतर की सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी और सूबाई क़यादत का लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें पार्टी उमूर, मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती हमेशा से हमारी जमात की असास रही है। हम मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और दहशत गर्दी की पुष्पनाही करने वाली बैरूनी कुव्वतों के नापाक अज़ाइम का डट कर मुकाबला करेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौम के इत्तेहाद से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। सियासी मुकालमे और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि जमहूरी अमल, इंसाफ, कौमी हम आहंगी और तरक्की का मजबूत तरीन जरिया है। चैलेंजेस से निपटने के लिए सब्र और मुसलसल मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान ने माली साल 2026 की पहली छमाही में 542 अरब रुपए का तारीखी मालियाती सरप्लस हासिल कर लिया है, जो मुल्क की माली इस्तेहकाम की अक्कासी करता है। हुकूमत की मौसर मौली पॉलिसियों, अखराजात में कमी और आमदन में इजाफे के बायस ये सरप्लस मुमकिन हुआ। खासतौर पर टैक्स वसूलियाँ, स्टेट बैंक के मुनाफे और पेट्रोलियम लेवी ने हुकूमती वसाइल में इजाफा किया। कर्जों की कबल अज़ वक्त अदायगी और अखराजाती नज़्म ज़ब्त ने माली बचत को मजीद मुस्तहकम बनाया। पाकिस्तान के ICT शोबे ने रवा माली पहले 7 माह के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाते हुए बरामदी तरसीलात ज़र में 19.78% इजाफा रिकॉर्ड किया है। इस अरसे में ICT बरामदात का हजम $2.61 अरब तक पहुंच गया, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में हासिल होने वाले $2.18 अरब के मुकाबले में नुमाया बेहतरी को जाहिर करता है। सिर्फ जनवरी 2026 में ICT खिदमात की बरामदात $374 मिलियन रही, जो जनवरी 2025 के $313 मिलियन के मुकाबले में 19.5% ज़ायद हैं। ये अदाद शुमार इस शोबे की मुसलसल तरक्की और आलमी मंडी में पाकिस्तान की बढ़ती हुई मौजूदगी का सबूत है। जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक हासिल होने वाले $2.61 अरब ICT शोबे को खिदमात के तमाम शोबों में सर फहरिस्त रखते हैं। इसके बाद दीगर कारोबारी खिदमात का शोबा $1.21 अरब के साथ दूसरे नंबर पर रहा। माहिरीन के मुताबिक ICT शोबे की ये मजबूत कारकर्दगी न सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का बाइस बन रही है, बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी का रुझान देखने में आ रहा है और 100 इंडेक्स इस वक्त 2600 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,75,765 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 3,870 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ और मार्केट 1,77,000 की हद उबूर कर गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि जनवरी में करंट अकाउंट बैलेंस का $12 करोड़ सरप्लस होना मार्केट में तेजी की अहम वजह है। इसके अलावा टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में रवा माली साल के पहले 7 माह में 1.25% इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ है। मुल्क में बेहतर होते माशी आशारियों की वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में साल ब साल बुनियाद पर 4.8% इजाफा हुआ है, जो मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि मुआशी चैलेंजेस सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि गवर्नेंस और अमल दरामद के खिला से जुड़े हैं। कस्टम्स और रेगुलेटरी नफाज की बेहतरी के बगैर कोई भी तिजारती रियायत मुअस्सर साबित नहीं हो सकती। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने केमिकल इंडस्ट्री के रहनुमाओं से गुफ्तगू में किया। उन्होंने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने सेक्टोरियल काउंसलर के तहत बाइख्तियार सेक्रेटेरिएट कायम करने और वाज़े अहदाफ मुकर्रर करने की तजवीज़ देते हुए कहा कि सेक्टरल काउंसलर्स को महज मुशावरती फोरम्स के बजाय तवील मुद्दती मौशी मनसूबाबंदी का
मौसर प्लेटफॉर्म बनाया जाए। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल के साथ केमिकल, फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल, फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए बरामदी सहूलतकारी स्कीमों का जायज़ा लेने और शफाफियत यकीनी बनाने की भी हिदायत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी ढाका में खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। एहसन इकबाल ने दोनों मुल्कों के दरमियान तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने और जामियात के दरमियान मजबूत रवाबित कायम करने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मसनूई ज़हानत ज़िंदगी के हर शोबे में बढ़ रहा है और मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का बड़ा चैलेंज बन चुकी है। उन्होंने निशानदेही की कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क हैं, इसलिए ज़रूरी है कि मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर इक़दाम किए जाएँ। एहसन इकबाल ने इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान तालीमी, साइंसी और माहौलियाती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि आज़मीन हज की खिदमत तमाम मुआवनीन का फ़र्ज़ है और इसे अपना मनसबी और इबादती फ़रीज़ा समझा जाए। हज मुआवनीन की तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि तमाम मुआवनीन को मेरिट पर मुंतखब किया गया है और उन्हें आला मयार की तरबियत फराहम की गई है ताकि वो आज़मीन की रहनुमाई और खिदमत बेहतरीन अंदाज में कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़मीन की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और मुआविनीन तहम्मुल बर्दाश्त के साथ खिदमत करें। वफाकी वज़ीर ने ऐलान किया कि रमज़ान के बाद मुआविनीन के लिए तरबियती वर्कशॉप का दूसरा सेशन मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मज़ीद अमली तरबियत दी जा सकेगी ताकि हज इंतज़ामात और आज़मीन के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। हुकूमत बलूचिस्तान ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फ़ेज़ 2 के तहत 847 किसानों को 3.2 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि इन कर्जों से सूबे में 35,609 एकड़ रकबे पर काश्तकारी मुमकिन बनाई जा रही है। फ़ेज़ 1 के तहत 257 किसानों को 6.85 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे पहले ही फराहम किए जा चुके हैं। हुकूमत बलूचिस्तान किसान कार्ड के जरिए गरीब किसानों को माली सहूलत फराहम कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बिलासूद कर्जों की फराहमी से ज़रई शोबे को मुस्तहकम और किसानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सरकारी और निजी शराकत दारी पॉलिसी बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में तालीम, ट्रांसपोर्ट, माहौलियाती, सयाहत और सनती तरक्की के अहम मंसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में सिंध भर में HTV और LTV ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स कायम करने और प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार देने का फैसला किया गया। 5 साल में 1 लाख ड्राइवर्स को तरबियत देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तालीम के शोबे में 40 नए सानवी स्कूल निजी शराकतदारी के तहत चलाने और 300 मॉडल स्कूल्स में इब्तदाई तालीम के मराकज़ कायम करने की मंजूरी दी गई, जबकि जंगलाती इलाकों में एको टूरिज्म के फ़रोग़ और मार्बल सिटी कराची मंसूबे पर काम तेज़ करने की भी हिदायत की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने तारिक रहमान को आम इंतखाबात में BNP की फैसला कुन कामयाबी और बांग्लादेश का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में सदर ममलकत ने बांग्लादेश में पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में अबूरी हुकूमत के किरदार को सराहा और बांग्लादेश की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ साथ खित्ते में अमन के फ़रोग़ की उम्मीद जाहिर की। सदर ममलकत ने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के लिए एक्स पर बंगाली ज़बान में भी तहनीती पैगाम शेयर किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के नाम मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान को हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी है। एक्स पर तहनीती पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अपने भाई तारिक रहमान के साथ करीबी और बामानी रवाबित के मुंतज़िर हैं ताकि पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बाहमी मफादात और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ढाका में नौमुंतखब वज़ीर आज़म बांग्लादेश तारिक रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक तमन्ना और मुबारकबाद का पैगाम पहुँचाया और बांग्लादेशी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने ताउन के अमली फ्रेमवर्क को तेज़ करने और खैर सगाली को ठोस नताइज में तब्दील करने के अज़्म का इयादा किया।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान समेत 85 ममालिक ने इसराइली एक तरफा इक़दाम और पॉलिसियों की शदीद मज़म्मत की है। एक मुश्तरका बयान में मकबूजा मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस में इसराइल की गैर कानूनी तोसी की भरपूर मुखालफत की गई। बयान में कहा गया है कि इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली इक़दाम से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तनाज़े के देरपा और रियासती हल की जारी कोशिशों को शदीद ख़तरात लाहिक हैं। मुश्तरका बयान में गैर कानूनी बस्तियों, जबरी बेदखली और इल्हाक़ की पॉलिसीज़ के खिलाफ मुश्तरका आज़म का इजहार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अहम सिफारती पेशरफ सामने आई है। स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में ओमान की सालिसी में होने वाले तकरीबन 3 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक बुनियादी उसूलों पर मुफ़ाहमत तक पहुँच चुके हैं जो आइंदा मुमकिना मुआहदे की बुनियाद बनेंगे। उन्होंने मुज़ाकरात को संजीदा और तामीरी करार दिया और बताया कि दोनों फ़रीक मुआहदे के मुसव्वदों पर काम करके एक दूसरे से तबादला करेंगे, ताहम फौरी तौर पर किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने का इम्कान नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर JD वेनिस ने कहा कि मुज़ाकरात बाज़ पहलुओं से हौसला अफजा रहे, लेकिन ईरान अब भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतय्यन करदा चंद रेड लाइन्स तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना था कि अमरीका फिलहाल सिफारती रास्ता जारी रखेगा, ताहम हतमी फैसले का इख्तियार सदर ट्रंप के पास होगा। मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हुए हैं जब खित्ते में कशीदगी बरकरार है और अमरीका की जानिब से इजाफी फौजी तैनाती की इत्तलात भी सामने आई हैं। दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अगले दौर से कबल तकनीकी और कानूनी निकात पर मजीद काम किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने कहा है कि ईरान की जौहरी सरगर्मियां पुरअमन मकासद के लिए हैं और हम खुलूस नीयत के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने अपने बयान में अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ किया है कि अमरीका गुज़श्ता कई दहाइयों में ईरान को ख़त्म करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी कौम ने दबाव के सामने कभी हथियार नहीं डाले। ईरान तसादुम नहीं चाहता, ताहम हमारी मुज़ाकरात की पॉलिसी को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के ख़त्म के बाद आलमी मंडी में सोने की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। ऐलान के फ़ौरन बाद सोना तकरीबन 1.9% गिरकर $4,880 फी औंस की सतह पर आ गया। सरमायाकारों ने जुग्राफिया कशीदगी में कमी के इम्कान पर सरमाया सोने से निकालकर अमरीकी डॉलर में मुंतकिल किया, जिससे डॉलर इंडेक्स में भी इजाफा देखा गया। माहिरीन के मुताबिक आइंदा कीमतों का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश की है। अपने खुसूसी पैगाम में उन्होंने कहा कि रमज़ान इबादत, सब्र, खैरात और हमदर्दी का महीना है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। सदर ट्रंप ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि ये मुकद्दस महीना अमन, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देने का पैगाम देता है। उन्होंने अमरीकी मुसलमानों की खिदमात को सराहा और सबके लिए अमन और खुशहाली की दुआ भी की। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बताया गया कि साल 2025 के दौरान दुनिया भर से 1,95,00,000 उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंचे। इजलास में बताया गया कि ज़ायरीन को बेहतरीन सिक्योरिटी, सफरी, रिहायशी और तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। माह सयाम के दौरान लाखों मज़ीद उम्रा ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है, जिनके लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। काबीना इजलास में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इजलास में 22 फरवरी को यौम तासीस भरपूर अंदाज में मनाने के इक़दामात की मंजूरी भी दी गई। भारतीय AI समिट में मुकम्मल बदइंतजामी और नाकामी भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गई है। शुरका ने भारतीय AI समिट के दौरान हुकाम की नाअहली के बायस शदीद इंतजामी बहरान का पोल खोल दिया है। भारतीय हुकाम के नाकिस इंतजामात के बायस शुरका सेशन के औकात की तस्दीक के इंतजार में घंटों दरबदर रहे। बरतानवी जरीदे के मुताबिक शुरका ने लंबी कतारों, भीड़ और इंतशार के अलावा स्टॉल से मस्तूआत चोरी होने की भी इत्तला दी। बरतानवी जरीदे के मुताबिक शुरका ने डिजिटल अदायगी न होने के बायस बैनुल अक़वामी वफूद की मुश्किलात का इंकशाफ किया है। भारतीय वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बद इंतजामी को तस्लीम करते हुए इंतजामात के नाकिस होने का एतराफ़ कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की आमरीत, नाअहली और दहशतगर्दी की सरपरस्ती ने मुल्क को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया है। बारूफ आलमी न्यूज़ एजेंसी गल्फ न्यूज़ के मुताबिक हिलने पासपोर्ट इंडेक्स में अफगान पासपोर्ट दुनिया भर में सबसे कमज़ोर करार दिया गया है।
رینکنگ کے مطابق افغان پاسپورٹ کی درجہ بندی 101 ہے اور اس کے حامل شہری صرف 25 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کمزور درجہ بندی طالبان کی انتہا پسندانہ پالیسیوں، بدترین سفارتی تعلقات اور ملک کی بد انتظامی کا نتیجہ ہے۔ افغان پاسپورٹ کا یہ رینک عالمی سطح پر طالبان رجیم کی ناکام خارجہ پالیسی اور معاشی اور سفارتی تنہائی کی واضح عکاسی کرتا ہے، جبکہ خطے کے لیے بھی سلامتی کے خطرات بڑھا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے انسداد منشیات فورس پنجاب کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور ادارے کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ انسداد منشیات سے متعلق یونیورسٹیز اور کالجز میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ڈی جی انسداد منشیات فورس بریگیڈیئر مظہر اقبال نے ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بریف کیا۔ اجلاس کے اختتام پر ڈی جی مظہر اقبال نے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کو خصوصی شیلڈ پیش کی۔ پنجاب کا بجٹ بنتا ہے جہاں پر 12 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ان کی صحت کیسی ہوگی، تعلیم کیسی ہوگی۔ آپ خود ایکسپیرینس کریں، آپ کو یہ اپرچونٹی ملے تاکہ آپ کا کانفیڈنس بڑھے، آپ کو اس کے ساتھ ایک سینس آف بلانگنگ پیدا ہو، آپ کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، پروسیجر کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ ایک ریلیشننگ ڈیولپ ہو جس سے آپ کی ہینڈز آن، آپ کو خود ایکسپیرینس ہو کہ آپ کا یہ تجربہ آپ کے کیریئر میں آپ کے کام آئے۔ مجھے بڑا اچھا لگا جب میں نے جو سوالات، جو میڈیم ہم نے ایڈورٹائز کیا تھا وہ واٹس ایپ تھا، اس پر جو نیچر آف کویسچنس تھا بڑے تھاٹ پرووکنگ کویسچنس تھے۔ سو I am fully confident that those boys and girls, those who are raising these questions, they have all the ability in every sense of word کہ ان کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے اور یہ بات چیت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ہمارا آج کا معاشرہ کسی تلوار کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، کسی انیکسیشن قبضے کی بنیاد پر قائم نہیں، یہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے۔ آئین الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، آپ کی جغرافیائی حدود کا تعین کرتا ہے، آپ کا نسق کیسا ہوگا اس کا تعین کرتا ہے۔ تو the societies are built upon words, so exchange of words between the generations is most important thing۔ یہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، ایک دوسرے کے پرسپیکٹوز کو کلیئر کرتا ہے۔ My generation, knowing your generation's point of view is extremely important, and what are the issues جن کا ریڈریسل آپ کے ان ایوانوں میں ہوتا ہے، یہ ضروری بات ہے۔ کیسے پریکٹس ہوتی ہے، ہاؤ دا پیپل اسٹینڈ اینڈ ہاؤ دے اسپیک۔ بات چیت کے دوران اختلاف رائے اور اختلاف رائے کو پھر تسلیم کرتے ہوئے کسی منطقی نتیجے تک پہنچنا۔ سو آئی ویلکم یو اگین، دس از یور لرننگ پروسیس، دس از این انٹریکٹیو سیشن، اینڈ آئی ہوپ دیٹ آل دوز یو آر ہیئر۔ مجھے بڑا ہی اچھا لگا، آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک مسٹر امجد علی جاوید فار ہز ویری ویلیویبل کنٹریبیوشنز، اور جو ہمارے ویلفیئر بورڈ کے ساتھ منسلک اسکول سے طلباء اور طالبات یہاں پر آئے ہیں، میں ان کو خصوصی طور پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کو اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آج کے جو لمحے ہم اکٹھے گزاریں گے، بات چیت کریں گے، اس کے ساتھ آپ کو سوچنے کا ایک زاویہ ملے گا، اور اس کے ساتھ آپ نیشنل ہوک اپ پہ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ دس ول بی ایکچولی in your academic career, in pursuit of your professional careers, in your citizenship, in your civic sense. I can assure you for this, that this will actually contribute, this hour or so or 2 hours will actually help in your life. آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو میں میرن we can open the house and questions could be taken. آج مجھے پتہ ہے بہت سارے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنا سوال کرنا چاہیں گے، بٹ ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے جو لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی
मोहम्मद अहमद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनको कहना था कि मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही पिन्हा है, कानून और आइन की बालादस्ती से ही मुआशरे की बका है। नाज़रीन, दिफाए वतन में अजीम कुर्बानी देने वाले शहदाए पाकिस्तान को सलाम। लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शहीद पाक फौज के एहलकारों के लवाहिकीन के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इन्नेकाद किया गया। तकरीब के आगाज़ में पाक फौज के शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में कोर कमांडर पेशावर ने शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की और वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर पेशावर का कहना था कि शहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनकी अजीम कुर्बानियाँ वतन की सलामती की ज़ामिन है। पाकिस्तान की कौम कभी अपने शहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकती। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि रात के औकात में बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। उधर पंजाब के मशरकी अजला में मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। ताहम बलोचिस्तान, साहिली और बालाई सिंध और पाड़ा चनार में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी रिकॉर्ड की गई। और अब आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सेनेगाल का दारुल हुकूमत डाकार रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड किया गया। 196 के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर, जबकि 182 के साथ मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा तीसरे नंबर पर रहा। चौथे नंबर पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका रहा। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेंडेस की जानिब। शुक्रिया कदीर आपका। नाज़रीन, बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे। कश्मीर के बेटे डॉक्टर फारूक एशाई की शहादत को 33 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 18 फरवरी 1993 को डॉक्टर फारूक को हिंदुस्तान के सफ़ाक फौजियों ने गोली मारकर शहीद कर दिया था। शहादत के दिन डॉक्टर इशाई के साथ उनकी अहलिया डॉक्टर फरीदा और उनकी बेटी भी मौजूद थीं। डॉक्टर फारूक के इलाज के लिए सर्जन डॉक्टर मंजूर और डॉक्टर सेठी को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कई घंटों तक रोके रखा। ज़्यादा खून बहने और फौरी तिबी इमदाद ना मिलने के बाद डॉक्टर फारूक इशाई शहीद हो गए। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक इशाई श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल के बानी थे। प्रोफेसर इशाई शहादत के वक्त चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में HOD भी थे। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक इशाई को कश्मीर में फादर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स का लक़ब भी हासिल था। डॉक्टर फारूक इशाई ने कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हाथों ज़ख्मी होने वाले शहरियों के तर्जमान की हैसियत से भी नुमाया खदमात अंजाम दी। कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में मर्दों के साथ ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हीं में से एक सिपाही खानवान बीबी भी शामिल हैं, जिनकी आज 47वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने जंग 47-48 में आज़ादी कश्मीर के लिए दलेरी की दास्तान शुजात रकम की। अक्टूबर 1947 में अपने शौहर सरदार आयतुल्लाह खान की शहादत के बाद जांबाज खातून ने पहले मुजाहिदीन ग्रुप हुसैन फोर्स में, जबकि बाद में 3 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। डोगरा फौज के खिलाफ सिपाही खानवान बीबी ने घात लगाकर हमले किए और एक हमले में शदीद जख्मी हुई। सिपाही खानवान बीबी को बहादुरी और दलेरी के एतराफ़ में मुजाहिदा हैदरी एजाज़ अता किया गया, जो सितारा जुर्रत के बराबर है। पाकिस्तान और कतर की इंसदाद मनशियात ऑपरेशन में एक और तारीखी कामयाबी। मुश्तरका ऑपरेशन में पाक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 4.48 किलोग्राम कोकेन स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कतरी हुकाम के इश्तराक से मुश्तरका इंटेलिजेंस बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। ANF ने पाकिस्तानी खातून मुसाफिर को एयरपोर्ट पर रोका, जो शारजा से दोहा के रास्ते इस्लामाबाद सफर कर रही थी। खातून के हाथ में मौजूद ट्रॉली बैग की मुकम्मल तलाशी के दौरान 4.48 किलोग्राम कोकेन बरामद की गई। मुलजमा की जानिब से मनशियात को महारत के साथ ट्रॉली बैग में छुपाया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजमा ने इंकशाफ किया उसका हैंडलर, जो मतलूबा वसूल कुनंदा से भी मुंसलिक था, एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। ANF ने कार्रवाई करते मुलजिम को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत जिला लोधरा के 200 जोड़ों की शादी की तकरीब स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुई। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 9 बेहाता जोड़ों को 2 लाख की सलामी भी दी गई। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत जिला लोधरा में तीसरे मरले में भी 200 जोड़ों की शादी का एहतमाम किया गया। शादीशुदा जोड़ों को पंजाब हुकूमत की तरफ से 2 लाख रुपए की सलामी भी दी गई। आज हुकूमत पंजाब CM साहिबा के विजन के हिसाब से सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के तहत यहाँ
200 जो कपल्स हैं उनकी शादियां करवाई जा रही हैं। इसके अलावा 4,500 जो बाराती हैं उनको खाना दिया गया है और जिनमें 3 जोड़े माइनॉरिटीज़ के हैं और एक डिसेबल जोड़ा भी शामिल है। और मेरे वालिदैन गरीब थे, वो मेरी शादी नहीं करवा सकते थे। मरियम नवाज़ का शुक्रिया कि उसने मुझे 2 लाख का चेक दिया। यहाँ पे बुलाया है और हमारी रुखसती के लिए यानी कि हमारी इमदाद की है और हम उनके हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको खाना खिलाया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबानी का गरीब आदमी है, मेरे 8 बेटियां ने, बच्चे छोटे ने, तो मेरी फुर्सत नहीं थी। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने फुर्सत दी है, सानू आसरा लाया। शादी की तकरीब में शरीक होने वाले 4500 अफराद को ज़ोराना भी दिया गया और 9 बेहते जोड़े को 2 लाख रुपए की सलामी और तोहफे भी दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का धी रानी प्रोग्राम गरीब ख़ानदानों की बेटियों और माली वसाइल की कमी की वजह से अपनी बच्चियों की शादी के ख्वाब देखने वाले वालिदैन की ख्वाबों की ताबीर है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। पंजाब की हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत रहीम यार खान में कायम होने वाले रेहड़ी बाजार खाने पीने की चीज़ों के सस्ते दामों फराहमी की वजह से इन दिनों आवाम की तवज्जो का मरकज़ है। रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक अहमद। पंजाब की हुकूमत ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बाजारों से तजावजात के खात्मे के लिए बाजारों में लगने वाली रेहड़ियों के लिए एक अलग से बाजार कायम किया है, जहां आवाम को रोजमर्रा खाने पीने की चीजें सरकारी नरखों पर दस्तयाब है। माशाल्लाह यहाँ पे हुकूमत ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, सवारी खड़ी करने की भी जगह है और इधर सारा सामान फ्रेश है और हुकूमत के रेट पे मिल रहा है। इधर सौदा खरीदने हम आए हैं और सही रेट में, जो लिस्ट का रेट है वो रेट ये रेडियो वाले दे रहे हैं। लोगों को कारोबार पे लगाया, रेडियां दी है, बहुत अच्छी बात है। फ्रूट का कम करता हूँ, मरियम नवाज साहब ने बहुत अच्छा किया, सानू अड्डे लवा के देते ने, पार्किंग भी है, आमदोरफ्त भी है। आम मार्केट से कम कीमत पर म्यारी फल और सब्जियां फराहम करने के लिए रहीम यार खान के नहर किनारे कैंप रेडी बाजार में बेहतरीन म्यार के फल और सब्जियां सार्फिन को सस्ते दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इन रेडी बाजारों से मेन रोड से तजावजात के खात्मे से ट्रैफिक की रवानी में आसानी आई है, जिससे शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। रमज़ानुल मुबारक में गरीब और मुतवस्सत तबके को रिलीफ देने के लिए ननकाना साहब में भी 2 मुख्तलिफ मकामात पर निगहबान रमज़ान बाजार लगाए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मौविया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर रमज़ानुल मुबारक में लोगों को अशिया खुदोनोश की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने के लिए ज़ली इंतज़ामिया की तरफ से ननकाना साहब और मंडी फैजाबाद में निगहबान रमज़ान बाजार लगाए गए हैं, जहाँ रोजमर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ मियारी अशिया 20% तक कम कीमत पर फरोख्त की जा रही है। निगहबान रमजान बाजार में 10 किलोग्राम आटे का थैला 50 रुपए कम कीमत के साथ 850 रुपए, चीनी 15 रुपए कम कीमत के साथ 140 रुपए फी किलोग्राम, जबकि मियारी गोश्त आम बाजार से 100 रुपए फी किलोग्राम कम कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। 100 से ज़ायद आइटम होते हैं जिन पे मिनिमम जो परसेंटेज कम होती है वो 5% होती है और मैक्सिमम जो है वो 20%। यहाँ पे हम हफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आला क्वालिटी का मटन, बीफ और चिकन और अंडे जो हैं वो फराहम कर रहे हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर। आटे पे 50 रुपए मार्केट से सस्ता दिया जा रहा है, घी पे 10 रुपए किलो की डिस्काउंट दी जा रही है, इसी तरह दालों पे 10 रुपए किलो तक और चीनी पे 15 रुपए किलो कमी की जा रही है। बड़ा बेहतरीन कदम उठाया गया है, खास करके ज़ख़ीरा अंदोज़ों की हौसला चिकनी के लिए। मरियम नवाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने गरीब आवाम के लिए जो सोचा है कि ये सस्ता रमज़ान बाजार लगाया है। हमने यहाँ से आटा खरीदा है, चिकन लिया है, सब्जियाँ वगैरह ली है, फ्रूट्स लिए हैं, काफ़ी फ़र्क है रेट्स का। माह मुक़द्दस में अवामुन्नास को अशिया खुर्दोनोश की सस्ते दामों पर आसानी फराहमी यकीनी बनाने के लिए निगहबान रमज़ान बाजार पंजाब हुकूमत का ऐसा इक़दाम है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। पोटोहार एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत जहलू में किसानों को जदीद ज़रूरी सहूलियात की फ्राहमी का अमल जारी है। लेज़र लैंड लेवलर्स की तकसीम के लिए होने वाली तकरीब में कुरानदाजी के जरिए 14 खुशनसीब काश्तकारों का इंतखाब किया गया, जिसकी तफसील बताएंगे नईम अख्तर अपनी रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की तरफ से किसानों की फलाह और ज़रूरी तरक्की के लिए लेज़र लैंड लेवल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद जारी है। पोटवार एग्रीकल्चर रिफॉर्मर प्रोग्राम के तहत जिला कौंसल हाल में होने वाली तकरीब में कुरानदाजी के जरिए 14 काश्तकारों को लेज़र लैंड लेवलर्स फराहम किए गए। इस स्कीम के तहत पंजाब हुकूमत की तरफ से फी यूनिट 6 से 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिसका मकसद जमीन की हमवारी, पानी के ज़िया में कमी और फी एकड़ पैदावार में नुमाया इजाफा यकीनी बनाना है। हमारा नाम भी निकला है इसमें, तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा का कि हमें 7 लाख की सब्सिडी मिली है। निहायत ही मशकूर हूँ मैडम मरियम नवाज साहबा का, CM पंजाब का
انہوں نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے ذمہ داروں کے لیے، لیزر لیب لینڈنگ یونٹ تقسیم کی ہیں، اس سے ذمہ دار خوشحال ہوں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی چودھری فارغ الطاف نے کہا کہ حکومت کسانوں کی خوشحالی اور زرعی شعبے کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ڈاکٹر زراعت فرحانہ جمیل نے کہا کہ لیزر لینڈ لیبلز کی فراہمی سے پٹھوار کے برانی علاقوں میں زرعی پیداوار بہتر ہوگی۔ اس ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت نہ صرف زرعی شعبے میں بہتری آئے گی بلکہ مقامی ترقی اور سماجی ترقی میں بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ لیزر لینڈ لیبر کی فراہمی کا یہ اقدام بارانی علاقوں میں زرعی ترقی کی طرف اہم پیش رفت ہے۔ نعیم اختر بٹی، پی ٹی وی نیوز، جہلم۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت ڈیرہ غازی خان میں غازی یونیورسٹی کے 392 ہونہار طلباء طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کر دیے گئے۔ مزید تفصیل شیخ محمد آصف رزاق کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈیرہ غازی خان کی آرٹس کونسل میں غازی یونیورسٹی کے نمایاں کارکردگی دکھانے والے 392 طلبہ و طالبات کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپ فراہم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے توانائی سردار اویس احمد خان لغاری تھے، جبکہ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن اشفاق احمد چودھری نے بطور مہمان اعزاز شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ لیپ ٹاپ کی فراہمی سے طلبہ کی تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور وہ ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بن سکیں گے۔ مجھے لیپ ٹاپ ملا ہے، میں پرائم منسٹر کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے اور میں نے بہت ساری چیزیں اس سے سیکھی۔ میں اس کو اچھے مقصد کے لیے، اپنی زندگی کے اعلیٰ مقصد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ میں پرائم منسٹر شہباز شریف کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں پڑھائی میں ہیلپ کے لیے لیپ ٹاپ دیا۔ اس ڈیوائس کا ہم استعمال اپنی اسٹڈی کو امپروو کرنے میں کریں گے۔ تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو تحقیق اور جدت کی جانب راغب کریں۔ محمد آصف رزاق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شیخوپورہ کی تحصیل مریدکے میں قائم ہونے والا ماڈل ریڑھی بازار کھانے پینے کی چیزوں کی ڈی سی ریٹ پر فراہمی کی وجہ سے عوام کی توجہ کا مرکز ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عامر حمید۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت تجاوزات کے خاتمے کے لیے بازاروں میں لگنے والی ریڑھیوں کے لیے الگ سے ماڈل ریڑھی بازار قائم کیا ہے، جہاں عوام کو روزمرہ کھانے پینے کی چیزیں ڈی سی ریٹ پر دستیاب ہیں، جس سے عوام کو مہنگائی سے نجات ملی ہے۔ جی سانوں اس چیز نال بڑی آسانی ہوئی ہے، ایک تو راشنی ہے، دوسرا سائڈ تے ہے۔ صارفین کو عام مارکیٹ سے کم قیمت پر معیاری پھل اور سبزیاں فراہم کرنے کے لیے مریدکے کے جی ٹی روڈ پر قائم ماڈل ریڑھی بازار میں بہترین معیار کے پھل اور سبزیاں بازار سے انتہائی سستے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز دے بہت شکر ادا کرنے ہیں کہ سانوں انہوں نے نویں ریڑھیاں دتیاں نے، جس کی وجہ تو اسی ایک جگہ تے کھڑے ہیں۔ ان ریڑھی بازاروں سے مین روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ ہوا ہے، جس سے ٹریفک کی روانی میں آسانی آئی ہے۔ عوامی خدمت کے لیے ریڑھی بازاروں کی تعداد مرحلہ وار بڑھائی جا رہی ہے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہر وقت ریڑھی بازاروں میں موجود ہیں۔ عامر حمید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مرید کے شیخوپورہ۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی ریلیف مشن کے تحت بورے والا میں سہولت بازار قائم کیا گیا ہے۔ بورے والا سے مسعود عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوامی ریلیف مشن کے تحت بورے والا میں سہولت بازار کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 88 دکانیں مکمل طور پر کاروباری سرگرمی کے لیے فعال ہیں، جہاں شہریوں کو روزمرہ استعمال کی معیاری اشیاء فروخت سرکاری نرخوں پر ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی۔ سہولت بازار کا افتتاح چیئرمین ملک افضل کھوکھر نے کمشنر ملتان ڈویژن اور پارلیمنٹیرین کے ہمراہ کیا۔ خوبصورت بازار بنا ہے جہاں پہ اسینشل کموڈیٹیز جو ہے وہ ڈی سی ریٹ سے بھی کم قیمت پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ملے گی، اور وہ لوگ جن کے پاس روزگار نہیں تھا مانند سے رینٹ پہ، ان کو یہاں پہ باعث روزگار ملا ہے۔ یہاں پر جو ہے ڈی سی ریٹ سے بھی کم پرائس پر جو ہے نا اشیاء عوام کو میسر آ سکیں گی۔ مریم نواز صاحبہ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے، پورے والا کی عوام کے لیے بہت انہوں نے سہولت پیدا کی ہے۔ دیانتداری سے اور ایمانداری سے انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار کریں گے اور سہولت بازار کو اور میڈم مریم نواز صاحبہ کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ریوارڈ دیں گے۔ مریم سی ایم دا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے سانوں یہ دکاناں لاٹ کی ہیں، صاف ستھرا ماحول ہے، اتنے بجلی فری ہے، پانی فری ہے، کرایہ بھی مناسب ہے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت بازار کا قیام بورے والا کی عوام کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بہترین تحفہ ہے۔ مسعود عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بورے والا۔ چنیوٹ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں انجمن اسلامیہ کے زیر اہتمام میڈیکل کیمپس کے انعقاد کیا گیا، جہاں وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ نے دورہ کر کے طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک محمد علی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے انجمن اسلامیہ کے زیر اہتمام میڈیکل کیمپوں کا سلسلہ جاری ہے۔
वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने मौजा जाम और कोट मियाना में कायम मेडिकल कैंपों का दौरा किया और फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। सैलाब के बाद मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफे के पेश नज़र डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासरीन को मुसलसल तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। क्योंकि तकरीबन हर कैंप में हमारे 400-500 मरीज आ जाते हैं, उनकी चेकिंग होती है, उनके बाद जो मर्ज होता है उसकी तशखीस होती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत कामयाब हमारी स्कीम है, क्योंकि ये ज़रूरत है इसकी, और ख़ासकर सैलाब आया हुआ था। अब जी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की यहाँ पर नज़र रखते हैं, जो हमसे हो सकता है हम करते हैं। बच्चों में इस जगह ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो डायरिया है, ठीक है ना, खांसी, रेशा, जुकाम और स्किन की एलर्जी की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। हमारा 13वां मेडिकल कैंप है। इससे पहले हम सैलाबज़दा इलाकों में 12 मेडिकल कैंप लगा चुके हैं। कैंपों में मजमूई तौर पर 500 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया गया, जहाँ खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को खुसूसी तवज्जो दी गई। इस मौके पर मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। सैलाब ज़दा इलाकों में मौसमी तब्दीलियों के साथ तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मेडिकल कैंपों का इनेकाद काबिल तहसीन भी है और काबिल तकलीद भी। मलक मोहम्मद अली, पाकिस्तान न्यूज़, चिन्योट। नाज़रीन, झींगों की फार्मिंग के आजमाइशी मंसूबे की कामयाबी के बाद अब कोट अदू मुजफ्फरगढ़ में झींगा स्टेट की तामीर भी शुरू कर दी गई है। सरदार बिलाल चांडियों की रिपोर्ट देखिए। कुछ अर्सा कबल ही सूबे में ब्लू इकोनॉमी के फरोग का ऐलान किया था। हुकूमत इस फ्लैगशिप मंसूबे के तहत जिला कोट अदू मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर झींगा स्टेट के अलावा स्टोरेज बनाए जाने हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जिला में झींगा स्टेट के क्याम का काम तेजी से जारी है। पाकिस्तान की तारीख का पहला इनिशिएटिव जिसमें ऑफ शोर पहली दफा श्रिम्प फार्मिंग की जा रही है दुनिया में, जिसमें एक श्रिम्प स्टेट जो है वो मुजफ्फरगढ़ के अंदर यहाँ बनाई गई है 2100 एकड़ के ऊपर, और एक जो श्रिम्प स्टेट है वो 4000 एकड़ के ऊपर अलीपुर में बनाई जा रही है इस वक्त। ये एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। पहली प्रोडक्शन है वो आ चुकी है, मार्केट में ले जाया गया है जहां पे उसको बहुत अच्छा बायर मिला है। मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी और यहाँ के लोकल फार्मर्स को भी इसका फायदा होगा। सूबे में एको कल्चर की कामयाबी के लिए गैर मुल्की माहिरीन की मदद भी ली गई है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अगले साल के आगाज में मकामी फार्मर्स को भी इस मंसूबे का हिस्सा बनाया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि झींगा स्टेट बनने के बाद जिला भर से सालाना हजारों मैट्रिक टन झींगा एक्सपोर्ट किया जाएगा। सरदार बिलाल चांडियो, PTV न्यूज, डिस्ट्रिक्ट कोट अदू। वफाकी हुकूमत के इश्तराक से हेस्को की जानिब से सिंध के 35 अजला की तरह मिटियारी जिला में हाला सिटी 2 एक्सप्रेस फ्री लोड शेडिंग फीडर का इफ्तिताह कर दिया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार आदिल। वफाकी हुकूमत के इश्तराक से हेस्को की जानिब से सिंध के दीगर 35 अजला की तरह मटियारी के शहर हाला में एक्सप्रेस फीडर सिटी 2 फ्री लोड शेयरिंग का चीफ एग्जीक्यूटिव फैजुल्लाह डायरी ने इफ्तिताह करके आगाज कर दिया। तकरीब में हेस्को अफसरान के साथ साथ नवाज लीग के मरकजी रहनुमा सैयद शाहजमा शाह, शहरी ताजर, सनअतकार, काश्तकारों ने भी शिरकत की। शहरियों ने लोड शेडिंग से मुकम्मल निजात पर खुशी का इजहार करते हुए बिलों की अदायगी का अज़म किया है और वफाकी हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया है। हम जो शुक्रिया अदा करते हैं वफाकी हुकूमत का और CO साहब का। इसके हम वफाकी वजीर बहुत शुक्रगुजार हैं और ऐसे इकदाम जो है पूरे मटियारी में बल्कि पूरे सिंध में होने चाहिए। अवाम को भी ताउन करना चाहिए। अच्छी बात है, लोड शेडिंग खत्म हो गई और रमजान का महीना भी है, बहुत लोगों को रिलीफ मिलेगा। हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव फैजुल्लाह डाहरी का कहना था कि हेस्को के सुनहरी दौर की 35वीं कड़ी है जिसके तहत फ्री लोड शेडिंग फीडर का आगाज कर दिया है। 35 फीडर लोड शेडिंग से आजाद हो गए। रवा माली साल में 68 फीडर जो है वो लोड शेडिंग से आजाद करने का इरादा रखते हैं। 93.5% तक पहुंचे हैं हेस्को। ये एक तारीखी कारनामा है और हेस्को इरादा रखता है कि हम इंशाल्लाह अनकरीब अपनी रिकवरी को 100% तक ले जाएंगे। ऐसे सुनहरी दौर में अवाम को भी बिजली की बिलों की अदायगी में हेस्को से ताबन करने की जरूरत है। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मटियारी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए गए हैं, जिसमें 164 लोडर रिक्शे और 106 हैवी मशीनरी गाड़ियां शामिल करके डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन को मुयस्सर बनाया गया है। मजीद तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर के सफाई के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए सैनिटेशन फ्लीट में नुमाया इजाफा किया गया है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के निज़ाम को मजीद मुयस्सर बनाने के लिए 164 नए लोडर रिक्शे शामिल कर दिए गए हैं, जबकि 106 हैवी मशीनरी गाड़ियां भी
तहसील के बेड़े का हिस्सा बना दी गई हैं। अपील करूंगा आपके चैनल से कि शहरियों से गुजारिश है कि इन बिन के अंदर कूड़ा डालें, इसके सामने कूड़ा ना डालें। अब आपकी गली मोहल्लों में हमारे ये रिक्शे फिर रहे होंगे, इनके अंदर कूड़ा डालें, इनको हैंड ओवर करें ताकि आपके लिए जो वज़ीर आला पंजाब कर रही हैं उसका फायदा हो सके। कमर्शियल सेंटर्स में सफाई के मयार को बेहतर बनाने के लिए 1400 वेस्ट बिन्स नस्ब किए जाएंगे, जिससे कूड़ा करकट को मुनासिब अंदाज में ठिकाने लगाने में मदद मिलेगी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान ख़वातीन के हुनर, सकाफत और कारोबारी एतमाद का हसीन इम्तजाज। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान डिवीजन के ज़ेर एहतमाम 11वीं सालाना 3 रोज़ा ब्लू फेयर नुमाइश का इन्नकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। नुमाइश में मुल्तान समेत मुल्क भर से आने वाली ख़वातीन ने अपने हाथों से तैयार करदा रवायती मलबूसात, नफीस ज्वेलरी, दीदा ज़ेब जूते और मुल्तान की पहचान ब्लू पोट्री के स्टॉल सजाए, जो शहरियों की खास तवज्जो का मरकज बने। 100 से ज़्यादा जो है ना स्टॉल्स हमने रखे हैं और इसमें ऑल पाकिस्तान जो ख़वातीन के बिजनेसेस हैं ना वो आई हैं, गिलगित, पेशावर और सवात से ख़ास तौर पे आई हैं। और वो ख़वातीन जो घरों में काम करती है, जिनके पास कोई जगह नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, उनको एक प्लेटफार्म हमने चैम्बर ने दिया है ताकि वो डायरेक्ट आके अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ रखे और मिडल मैन के किरदार को हमने ख़त्म कर दिया है। ब्लू फेयर में मुल्तान की तहजीब और सकाफती रंग नुमाया रहे, जहाँ ख़वातीन कारीगरों की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतें हर स्टॉल पर बोलती नजर आईं। नुमाइश का मकसद ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना और मुकामी मसनूआत को फ़रोग देना है। कैप्स है, वॉलेट्स है, बैग्स है, कारपेट्स है, ये सारी हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं जो हम वहाँ पे ख़वातीन बनाती हैं। पाकिस्तान भर से लोग आए हुए हैं, तो हैंडी क्राफ्ट्स के यहाँ बहुत अच्छे काम हैं, हाथ की कढ़ाई के काम हैं। ब्लू फेयर जैसी नुमाइशें ख़वातीन के हुनर को उजागर करने के साथ साथ मुकामी सनत और मैशियत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करती हैं। 3 रोज़ा ब्लू फेयर नुमाइश ने शहरियों को सकाफत, खरीदारी और ख़वातीन को हुनर से जुड़ने का खूबसूरत मौका फराहम किया। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और यूनान वर्क वीज़ा हासिल करने वालों को बड़ी सहूलत फराहम कर दी गई है। अब वर्क वीज़ा होल्डर को बजरिया टेलीफोन सिफारत खाना खुद अपॉइंटमेंट से आगाह करेगा। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यूनान से जफर साही। यूनानी जो हुकूमत है उनकी तरफ से एक अहम पेशरफ्त जो सामने आई है कि आप जो यूनान से जो भी वीज़ा निकलेगा उसका जो टाइम है वो यूनानी एम्बेसी जो है वो फराहम करेगी और बाकायदा जो परमिट होगा उस पर जो यूनानी मालिक है उसका मुकम्मल डेटा और उसकी जो जीमेल है वो होगी और जिस आदमी को वो वीज़ा होगा बाकायदा उसका फ़ोन नंबर और जीमेल उस आदमी की होगी और जो इस्लामाबाद में यूनानी सफारत खाना है वो मुतलका आदमी को जो है वो मेल करेगा या उसको कॉल करेगा और उसको टाइम बताएगा कि किस दिन उसने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जो इस्लामाबाद में यूनानी सफारत खाना है वहाँ आना है। इस काम की वजह से जो एजेंट माफिया जो कि लाखों रुपया जो है वो वहाँ वसूल करते थे टाइम लेने के हवाले से, उनकी छुट्टी हो गई है। नाज़रीन, खेलों की खबरों में खुशामदीद। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज नमीबिया के खिलाफ खेलेगी। कोलंबो में शेड्यूल मुकाबला दिन 2:30 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सुपर 8 मरहले में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को मैच में कामयाबी दरकार है। ग्रुप A से अब तक भारत ने 6 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 मरहले में जगह बनाई है। अमरीका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं, ताहम अमरीका बेहतर रन रेट के बायस दूसरे नंबर पर है। नमीबिया के खिलाफ मैच जीतकर पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगा, जबकि बारिश के बायस मैच मनसूख हुआ तो भी पाकिस्तानी टीम सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के 34वें मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात ने जनूबी अफ्रीका को 123 रन का हदफ दे दिया। बारिश के बायस मैच रुका हुआ है। मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। दिल्ली में खेले जा रहे मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर मुत्तहिदा अरब अमारात को पहले बैटिंग करने की दावत दी। UAE ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 122 रन बनाए। अलीशान शराफो ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के कार्बन बोश ने 3 विकेटें हासिल की। इवेंट का 36वां मैच शाम 6:30 बजे मेजबान भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान अहमदाबाद में होगा।
नेपाल ने 12 साल इंतजार का खात्मा करते हुए T20 वर्ल्ड कप में अपनी तीसरी फतह हासिल कर ली। मुंबई में खेले गए मैच में नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी। स्कॉटलैंड ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 170 रन बनाए। माइकल जॉन्स ने 71 रन की इनिंग्स खेली। नेपाल की तरफ से सोमपॉल कौमी ने 3 और नंद यादव ने 2 विकेटें हासिल की। नेपाल ने 171 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। दीपेंद्र सिंह आयरी ने 23 गेंदों पर 50 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। कुशाल भरतल ने 43 और आसिफ शेख ने 33 रन बनाए। दीपेंद्र सिंह आयरी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। वजारत खेल सिंध की जानिब से कौमी खेलों के फरोग और नौजवान टैलेंट को उभारने के लिए सखर में गुलाम मोहम्मद महर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 25 रोज तक जारी रहने वाले इवेंट में मुख्तलिफ अजला से 40 टीमों ने हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं सखर से मलिक इमरान शाहिद की इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध की वजारत स्पोर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम सखर में रीजनल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 40,000 टीमों ने हिस्सा लिया। एक माह तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ मुकाबलों के बाद सखर और पन्नोकिल की टीमें फाइनल तक पहुंची, जिसमें सखर की टीम ने फतह हासिल की। महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से किए जाने वाले इकदाम को खेलों से वाबस्ता अफराद और खिलाड़ियों ने खुसूसी तौर पर सराहा है। 40 क्लबों ने हिस्सा लिया था, जिसका फाइनल जो है 25 दिन के बाद आज उसका फाइनल हुआ है सिंध नेशनल सखर के दरमियान और पन्नोकिल के दरमियान, और जिसमें देखा कि आपने सिंध नेशनल जो है वो इस मुकाबले को जीत चुका है और ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तमाम सिंध से टीमों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत हेल्दी एक कंपटीशन था जिसमें सखर की टीम्स ने पार्टिसिपेट भी किया बल्कि विन किया टूर्नामेंट को। और मैं इसलिए आया हूँ आज देखने के लिए कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है एज अ क्रिकेटर कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ जिसमें सिंध की टीमों ने हिस्सा लिया। यहाँ पे क्वालिटी प्लेयर्स आए, क्वालिटी खेले और ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ है। माशाल्लाह हमें बहुत खुशी हो रही है, हमने ये टूर्नामेंट जीता है। हमारी टीम बहुत अच्छा खेली पूरे इवेंट में, फाइनल तक पहुंचे, ये भी अच्छी बात है। खेलों के फरोग के लिए इस किस्म के इकदाम सूदमंद साबित होते हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। नाजरीन, खेलों की खबरें आपने जानी, अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।